Welcome to Youth 2.0 Transcending Horizons, fourth conversation with Sadhvi Vibhashreeji Maharasa and Sadhika Dr. Pragba Virat. I would like to say this is the fourth conversation, not the last conversation. The core committee has been truly blessed to have known the teachings of Marasa. We have learned them and we have grown with them. And we felt a transformation within. And we wish that everyone should know these simple yet worthy teachings. Before beginning, I have some important announcement and I would like to welcome Admiral DSP Verma back with us today. So it's a motivation that you are here with us today. For me, it's like congregating entire universe in just few words. She was born in a prosperous religious family of Jodhpur. Since her childhood, the highness of her soul was perceived by many eminent sadhus, and also at the age of 20, she undertook the holy robes of sainthood. We celebrated her 21st Diksha Divas on 22nd April. लेकिन उनके अंदर की ज्ञान ग्रहण करने की अभिलाषा अभी खत्म नहीं हुई थी. इसी तीव्र जिज्ञासा के चलते she met आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव in 2002. He unfolded all the hidden treasures, resolved all her curiosities, doubts and showed divine light longed by every soul. जैसे हम सब जानते हैं, विद्या ददाति विनयम. महाराज साहब जी ने अपने विनयी स्वभाव से विद्या ग्रहण की. महाराज साहब जी वो कहते हैं ना, अगर शिद्दत से कोई चीज चाहो, उप्स करेक्टेड बाय महाराज साहब जी, अगर शिद्दत से कोई चीज मांगो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है. ठीक उसी तरह महाराज साहब जी के जीवन की मांग, सत्य की खोज जो आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव के मिलने से पूरी हुई. यहाँ विराट गुरुदेव द्वारा लिखे गए भजन की 2 लाइनें याद आ गई. आशीष से तुम्हारी दुख दूर हो रहा है, अंतर मन में सुख का सोता भरपूर हो रहा है. This journey with Virat Gurudev was started with lots of sadhanas and journey of rigorous study of Jain Sutra. After years of sadhana and study, Pujya Guruvarya Shri Vibhashreeji Maharasa came up with monthly magazine from January 2007 and 160 magazines till date. In 2008, Charamangal Sanstha was first started in Delhi and now in many states of our country. As Marsab ji believes in being technology friendly, she came up with an idea of morning audios in 2012. These audios have encapsulated knowledge of everything. और आज 3000 से भी ज्यादा ऑडियोज रिकॉर्ड हुए हैं, each with a unique topic. In the year 2015, Marsab ji enlarged the scope of dispersing knowledge through YouTube. आज देखते ही देखते मारा साहब जी के ज्ञान का मीठा रस 51,600 लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहा है YouTube के माध्यम से. अब जैसे हम जानते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग का जमाना है, उसी की आवश्यकता को समझते हुए गुरुवर्या श्री वैभवश्रीजी महाराज साहब has made a certified course. Yes, a certified course known as Jainism in Universal Terms, which widens the area of Jain philosophy. Also have conducted the classes of Tattvart Sutra, which is now available on Udemy. गुरुवर्या जी ने अलग अलग माध्यमों से लोगों तक ज्ञान पहुंचाया है, जिसमें किताबें भी शामिल है, जैसे बात नमोकार की, परिक्रमा विज्ञान, त्रिशूल, मानो मत जानो, आत्म पूजा उपनिषद इत्यादि. She is well known for explaining logics behind all the religious philosophies and has explained teachings of various other great personalities. Here I can say हम यूथ जो दिल में हजारों सवाल, डाउट्स का बड़ा सा पिटारा लेकर घूमते हैं और जिद एक ही कि भैया लॉजिक चाहिए, नहीं तो नहीं मानेंगे, उस यूथ को आपने लॉजिक दिया. एंड आई वुड से गुरुवर्या जी, आप फॉर यूथ, आप हमारे लिए ही बने हो. आज कोई भी आपके ज्ञान से अछूता नहीं है. Her mission is to raise every human being to the peak of their potential by enriching their lives with knowledge. Just 2 lines to describe her journey. हम अकेले ही चले थे मंजिले मकसूद को, हम अकेले ही चले थे मंजिले मकसूद को, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. So
Please help me in welcoming the contemporary spiritual leader, the Pravartika of Virat Charam Mangal Sangh, with millions of global followers, Shri Pujya Guruvarya Shri Vaibhav Shiji Marasa. Thank you. जय हो। ध्याने मूलं गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरोर्पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। बोधि प्रदाता सदगुरुदेव के श्री चरणों में वंदन नमन। सबसे पहले मैं यूथ चरम मंगल ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों को सुन के ऐसा लग रहा है जैसे किसी बागवान को अपने बगीचे में खिलते फूलों को देखकर लगता है। इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप सब लोग कितनी अच्छी तरह से अपने भीतर की योग्यताओं को जी रहे हो और आनंदित हो रहे हो, मस्त हो रहे हो। यूथ चरम मंगल ग्रुप को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामना। आपका ये वेबिनार बहुत सक्सेसफुल रहा। यूथ 2.0 ट्रांसेंडिंग हॉराइजन्स, आप लोगों ने मेहनत की मात्र 5-6 दिनों के अंदर, और कहां से भव्य लोगों को उनके भावों को व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। राकेश भैया, श्रीकांत भैया, अभय भैया, आप सब ने अपने बहुत अच्छे थॉट्स, अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस सबके साथ शेयर किए और यूथ को इंस्पायर किया। डॉक्टर प्राभा जी विराट ने इस सारे कार्यक्रम को एक सूत्रधार बनकर के संचालित किया, और आप सुनने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स ने पूरा मन लगा करके सबको सुना और सबके उत्साह को बढ़ाया और अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा भी, नो डाउट। अब हम आज के टॉपिक पे बात करें, क्रिएट द न्यू बायोस्कोप। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम विराट गुरु जी की एक कविता की चंद पंक्तियां आप सभी यूथ चरमंगल के लिए यहां पर कहेंगे। सांस रोककर आशा बांधे, देखे दुनिया सारी। सांस रोककर आशा बांधे, देखे दुनिया सारी। पूर्व पुरुष दे गए बहुत कुछ, अब है तेरी बारी। यानी पूरी दुनिया अपनी सांस थाम करके बैठी है और आपकी तरफ देख रही है। पूर्व पुरुषों ने हमें बहुत कुछ दिया, अब देने की बारी आपकी है। बाइसिकल से गति दे गया वायुयान नभ सारा, सागर की गहराई देकर मस्तक तेरा उभारा। भावी संतति पूछ रही, तू किसका आविष्कारी। आने वाली पीढ़ी पूछ रही है कि तुम किसका आविष्कार करने वाले हो। भावी संतति पूछ रही, तू किसका आविष्कारी। पूर्व पुरुष दे गया बहुत कुछ, अब है तेरी बारी। अब आप सबकी बारी है, हम सबकी बारी है। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया, पूरी सांस्कृतिक विरासत हमारे हाथ में वो थाम गए। उन्होंने अपने जीवन की जी तोड़ कमाई को मंदिरों में, स्थानकों में, साधु संतों के निर्माण में, समाज के निर्माण में, समाज को संस्कारित करने में, सब कुछ तो उन्होंने समर्पित कर दिया। तन मन धन, अपनी योग्यता, अपनी प्रज्ञा, सब कुछ दे दी। अब हमारी बारी आई है। विराट गुरु जी कहा करते, वह क्या महकेगा, वह क्या महकेगा, गुलशन महकाने का जिसमें भाव नहीं। वह क्या महकेगा जिसमें गुलशन को महकाने का भाव नहीं, वादियों की दुर्गंध को सुगंध बनाने की चाह नहीं।
वादियों की दुर्गंध को सुगंध बनाने की चाह नहीं, वह क्या महकेगा जिसमें गुलशन को महकाने का भाव नहीं। क्रिएट अ न्यू बायोस्कोप। इस बात को सोच करके अपने लिए एक नया चित्रपट तैयार करो कि वादियों में कहाँ कहाँ दुर्गंध है, उसको हमें दूर करना है और सबको महकाना है। कुछ महीनों पहले हम मुंबई में थे। एक युवक किसी की प्रेरणा से पहली बार मिलने को आया। थोड़ी देर बैठा रहा, शांति से हमारी कुछ चर्चाओं को सुनता रहा। उसके बाद में बोला कि क्या मैं एक सवाल पूछने की जरूरत कर सकता हूँ? हमने कहा क्यों नहीं पूछ सकते बेटा, कोई भी सवाल कर सकता, आप पूछो। तो बोला, महाराज साहब, मैं जैन साधु से पहली बार मिल रहा हूँ, मैं नहीं जानता आप क्या करते हो, आप समाज को क्या देते हो, पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हमने बोला क्या कंफ्यूजन है आपका? वह युवक अभी सीए की पढ़ाई कर रहा है। तो मुझे कहता है कि महाराज साहब, मैं क्या बनूंगा मुझे यही नहीं पता। मुझे सारे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारा क्या गोल है, तो मुझे पता ही नहीं मेरा क्या गोल है, जबकि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास में बहुत सारे गोल है जो उनको अचीव करने लाइफ के अंदर में। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, पर महाराज साहब मैं नहीं जानता कि मुझे बनना क्या है। हमने कहा भैया, हम में से कोई भी नहीं जानता कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, हमारा भविष्य का चित्रपट कैसा होगा, हम में से कौन जानता है। पैदा होने के साथ में किसको पता था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा? हम सोचे क्या नरेंद्र मोदी जी को पता था बचपन में कि वो किसी दिन भारत के इतने ग्रेट लीडर बनेंगे? नहीं पता था। और जिसने संपूर्ण विश्व को अपना ये मैसेज दिया कि बड़े सपने देखो, उस हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने क्या बचपन में ऐसा कभी सोचा था कि वो किसी दिन इस महान भूभाग भारत के ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे? शायद उन्होंने भी ऐसा सोचा नहीं होगा, सपना नहीं देखा होगा। तो हम अपने लिए एक नया बायोस्कोप कैसे क्रिएट करेंगे, एक नया चित्रपट कैसे करेंगे? हमें क्या पता हम क्या बनने वाले हैं? ये सवाल है ना, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं जानते। जब उस युवक ने कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे लगा कितना इनोसेंट है ये युवक, कितना ईमानदार है। बाहर की इंफॉर्मेशन सुन सुन करके ऐसे क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। हमने कहा भैया एक बात तो है कि आप क्या बनोगे ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हम योग्य बने। आप क्यों नहीं योग्य बनो, काबिल बनो? बोला हाँ ये बात जम गई, मैं योग्य बनूं। हमने कहा हम किसी भी फील्ड में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ स्टाइल सबकी डिफरेंट है, लेकिन लाइफ तो समान है ना। जीवन जीने के तरीके सबके अलग अलग है, लेकिन जीवन तो जीवन ही है ना, जो भीतर से बाहर बहता है, बाहर के प्रभावों को लेता है, लेकिन भीतर के भावों से गति पाता है। बाहर के प्रभावों को हम लेते हैं, लेकिन अंतर के भावों से हम गति पाते हैं। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी का लक्ष्य ये बनाएं कि हमें काबिल होना है, योग्य होना है। और योग्य होने का तरीका क्या है? हर पल सजग रहो, अवेयर रहो, हर पल सीखते रहो। नंबर 2 पॉइंट, हर पल सीखते रहो, सजग रहो, सीखते रहो। और नंबर 3 कि हर पल सहयोगी रहो, हर पल सहयोगी रहो, कंट्रीब्यूटर बनो। बहुत अच्छी बात उस दिन श्रीकांत गुप्ता के उस मैसेज में थी कि हमें केवल उपभोक्ता नहीं बनना है, हमें केवल कंज्यूमर नहीं बनना है, हमें कंट्रीब्यूटर बनना है। इस पॉइंट को जरूर याद रखें कि हम इस दुनिया के अंदर केवल सुविधाओं को भोगने के लिए नहीं पैदा हुए, ऐशो आराम में जीने के लिए नहीं आए। हमें कंट्रीब्यूटर बनना है, योग्य बनना है। तो 3 चीजें, हम बहुत सारे तरीके हैं, हम आज 3 चीजों की तो कम से कम बात करें। पहला पॉइंट, हमेशा सजग रहो। सजग रहो यानी अनआलसी रहो, अटेंटिव रहो, आलस मत करो। आप में से हर एक व्यक्ति महानतम संभावनाओं का एक घर है, लेकिन आपकी पॉसिबिलिटीज, आपकी योग्यताएं कब खिलेगी? जब आप जागृत हो। अगर सोए पड़े रहे, आलस में रहे, गपशप मारने में ही अपना दिन बिताते रहे और फालतू कामों में ही अपना सारा टाइम लगा दिया, तो कैसे काबिल बनोगे?
इसलिए सजग बनो, बी अटेंटिव, बी अवेयर। द सेकेंड पॉइंट, हमेशा सीखते रहो। लर्निंग इज एंडलेस प्रोसेस। जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ और कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं, जो उनसे बात करती हूँ, और अक्सर पेरेंट्स शिकायतों से भरे ही आते हैं अपने बच्चों को लेकर के, मेरा बेटा ये नहीं करता, वो नहीं करता। यू नो, पेरेंट्स को कितना भी आप अच्छा करोगे लेकिन वो आपको और ज्यादा अच्छा बनाने की ही चाहत से भरे होंगे, इसीलिए आपके लिए हमेशा कोई ना कोई नई उम्मीदें आपके सामने रखेंगे। और कुछ बुरा भी नहीं है, वो ठीक ही कह रहे, सोचते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि तो हम क्या करें। मैं उनको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर पापा किसी दिन दुकान जाते हैं और शाम तक अगर कुछ भी पैसे की कमाई करके ना आए तो उनको वो दिन कैसा लगता है? बच्चे बोलते हैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर बिजनेस कर रहे हो और कुछ कमाई नहीं कर रहे हो तो उनके लिए तो वो दिन ऐसा गया जैसे व्यर्थ गया। मैंने कहा जैसे पापा के लिए पैसा बेशकीमती है और हर दिन पैसा कमाना उनका मोटो रहता है, ऐसे ही तुम्हारे लिए हर दिन कुछ नया सीखना होना चाहिए। अगर तुमने आज के दिन कुछ नया नहीं सीखा, कुछ नया नहीं जाना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ नया रिसर्च नहीं किया, कुछ नया खोजा नहीं, तो तुम अपने पूरे दिन को ऐसे ही बिता डालोगे और आज का दिन बिना कमाई के गया। पिताजी के लिए पैसा कमाई के रूप में है और आपके लिए और हमारे लिए शिक्षा, ज्ञान। ज्ञान से समृद्ध बनो, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो कभी भी नष्ट नहीं होती। बाकी सारी संपत्तियां आती है चली जाती है। किसी दिन बहुत अमीर लोग भी बहुत सारे ऐसे स्थानों में फंस जाते हैं जहां उनको बिना पैसे के रहना पड़ता है। कई बार पैसा नहीं होता, कर्जा चढ़ जाता है, और जितना ज्यादा आदमी पैसे वाला होता है उतना ही उसको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी दिन पैसा भी चला जाए, पॉसिबल है, लेकिन आपकी विद्या, आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, आपका इंटेलेक्ट, वो आपका एक ऐसा खजाना है जो कभी भी कहीं भी आपका हमेशा साथ देगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहो, चाहे वो तुम्हारे किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। और जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा काबिल बनोगे। एंड द थर्ड पॉइंट, अगर आप सीखते हो और अगर आप अटेंटिव हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रकृति में ऐसे स्थान खुलते जाएंगे जिन पर जाने के लिए आपको कोई ना कोई प्रेरणा मिलेगी या कोई ना कोई चुनौती मिलेगी। ध्यान दीजिए, अगर आपके पिता करोड़ों में कमाते हैं तो किसी दिन लॉस भी करते हैं तो करोड़ों तक का कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका पिता अभी कुछ पैसे ही कमाता है उसका लॉस भी कुछ पैसों में ही होगा, ठीक है। बड़ी चुनौतियां किनके पास आई? जिनके पास में बड़ी काबिलियत है। जिस दिन आपके पास काबिलियत बढ़ेगी आपके पास चुनौतियां भी बढ़ेगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे लाइफ में, और वो चैलेंजेस ही आपको और नई काबिलियत पैदा करवाने के लिए, प्रकट करवाने के लिए आपके रास्ते खुलेंगे। चक्रवर्तियों के सामने ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें गुफाओं के द्वार खोलने पड़ते हैं, उन्हें सागरों के बीच में बहुत सारे पुल बनाने होते हैं। ये सारी कठिन चुनौतियां उनके जीवन में आती है जिनके पास में बहुत उत्कृष्ट काबिलियत होती है। और विराट गुरु जी सिखाते थे कि कभी भी परीक्षा बड़ी नहीं है, परीक्षा बड़ी नहीं है, परीक्षा देने वाला बड़ा है। चुनौती बड़ी नहीं है, चुनौती किसको मिली है? उसकी काबिलियत बड़ी है। और आपकी काबिलियत जितनी बढ़ती जाएगी आपकी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा चुनौतियां भी, चैलेंजेस भी आएंगे और आपके सामने प्रेरणाएं भी आएंगी। और तब उन प्रेरणाओं से आप और विकसित होगे और ज्यादा समाज के लिए सहयोगी बन सकोगे, सहयोगी बन सकोगे। सहयोगी बनने का उत्कृष्ट भाव रखो, बड़ा भाव रखो। ऐसा भाव रखो कि आपके होने से पूरा गुलशन महके। ऐसा भाव रखो कि आप जहां जाओ सब जगह ज्योत प्रसारित हो। अपने भीतर प्रेम और ज्ञान की ज्योत जगाओ ताकि जहां भी बैठो सबके दिलों के अंदर प्रेम और ज्ञान को फैला सको। सुबह की प्रार्थना में बोलते भी होंगे आप लोग कि पहले सीखो प्रेम ज्ञान, फिर दया अर्थ सच्चा जानू, शोधु आगम घट में उतरू, फिर श्रद्धा से भर मानू। इतनी
इतनी कृपा करो गुरुवर में, निज अंतर में डूब मरूं, स्वयं समर्पित जीना सीखो, जग में जीवन ज्योत भरो। जग में जीवन ज्योति भरो यानी हमारा होना ऐसा हो कि पूरे जगत में जीवन की ज्योति भरने वाला हो, सबको जिलाना सिखा सके, सबको उत्साह दे सके, आनंद दे सके, सबको प्रेम दे सके, सबको प्रेरणा दे सके। और कुछ नहीं तो आप कुछ अच्छे वचन बोल सकते हो जिससे कि कितने लोगों के मन के अंदर में कुछ उत्साह जाग सके। तो हम बहुत कुछ इस दुनिया के लिए सहयोगी बन सकते हैं। भाव रखो सहयोगी बनने का, और जब आप अपने सहयोग काबिल पुरुष की ये निशानी है कि वो औरों को काबिल बना सकता है, औरों का सहयोगी बन सकता है, और जितना ज्यादा वो सहयोग देता है उतना ही ज्यादा वह काबिल बन पाता है। तो हम सब लोग अपने जीवन में क्या बनेंगे, आगे क्या करेंगे, कल कौन सा पल आएगा और वह पल हमारे लिए कैसा सीन लाएगा, वी डोंट नो। लेकिन अपने आप को सदा तैयार रखो, सदा सजग रहो, सीखते रहो, सहयोगी बनो और सद्भाव फैलाते रहो। हर पल ग्रेटफुल बनो, थैंकफुल बनो, क्योंकि आज जितने लोग जिस भी चीज को लेकर के पीड़ित है, चाहे कोई स्वास्थ्य को लेकर के पीड़ित है, चाहे कोई रिलेशंस को लेकर के पीड़ित है, पीड़ित यानी दुखी है, कष्ट पा रहा है, किसी के फैमिली के लोग उसको कष्ट दे रहे हैं, किसी का बिजनेस उसको कष्ट दे रहा है, किसी को सोसाइटी में उसको बहुत ज्यादा कष्ट मिल रहा है। अब देखो जिन लोगों की जिंदगी में इस तरह के कष्ट आ रहे हैं, पीड़ाएं आ रही है, उन लोगों के पीछे उस कारण क्या है, वो इतने कष्ट को क्यों पा रहे हैं, कहीं उनसे भूल कहाँ हुई? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जो कष्ट दे रहा है भूल उसकी नहीं है, कष्ट जिसको आ रहा है उसको ये चिंतन करना होगा कि मुझ में कहाँ भूल रही कि मैं इन कष्टों को नियंत्रित कर रहा हूँ। यानी अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना निरीक्षण करना है कि मुझ में कहाँ गलती हुई या मुझ में क्या ऐसा रहा कि मैंने इसके अंदर की गाली को प्रोवोक किया, इसके अंदर की गाली को अट्रैक्ट किया। तो जब आप खोजोगे तो आपको कारण समझ में आएगा कि जहां जहां हमने प्राप्त साधनों का, प्राप्त सुविधाओं का रेस्पेक्ट नहीं किया, थैंकफुल नहीं बने, जहां जहां हम लापरवाह हो गए, विनम्र नहीं बने, जहां जहां हम हम्बल नहीं बने, जहां जहां हमने लोगों के लिए सहयोग नहीं किया, सद्भावना नहीं दी, वहां से हमको पीड़ा आ रही है, वहां से कष्ट आ रहे हैं। जब तक रिश्ते होते हैं जब हम कदर नहीं करते, और जब रिश्ते चले जाते हैं तब हम दुख मनाते हैं। तो जब जो मिला है उसकी कदर करना सीखो, काबिल बनोगे। और जब जो मिला है उसके लिए हमेशा दुआ दो, हर पल दुआ दो। यानी हर दिन सुबह उठने के साथ रात सोने से पहले अपने जहन में जुड़े हुए सारी जीवों के लिए, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, आपकी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो जो आपके दिलो दिमाग में रहते हैं, आपकी जिंदगी के अभिन्न हिस्से हैं, उन सब के लिए हमेशा प्रेयर करो। सबके लिए कहो कि सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सबको समृद्धि मिले, सबको सुख शांति मिले। आपके भीतर से जो भी वर्डिंग्स निकले, जिस भी लैंग्वेज में निकले, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में आप बोलो, लेकिन आप अपने दिल की भावनाओं से सबको अपनी ब्लेसिंग्स दो। और ब्लेसिंग्स कोई भी दे सकता है, छोटा बड़ा कोई भी दे सकता है। आप सबको ब्लेसिंग्स दो, तब देखो आपकी समृद्धि बढ़ती जाएगी, सद्भावना समृद्धियां लाएगी, और तब आपको फ्यूचर में जब जहां जिस सहयोग की जरूरत पड़ेगी आपको सहयोग ऑटोमेटिकली मिलेगा। आपको कभी भी अभावों से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। तो क्रिएट अ न्यू पेरिस्कोप कैसे करोगे? सहयोग देकर के, सद्भाव देकर के, समय का सदुपयोग करके, सजग रह करके, और हमेशा कुछ नया सीखते रहने से। जय हो, जय हो, जय हो। Coming back to what Marasa said, Vaibhashiji Marasa, like your words are, I mean, you have got everything, and I just don't have any words to explain, but I completely understand what you mean by attentive, be alert, jo hai apramad, that you've always been asked to follow. Second is sahayogi, that is contributor. This has been a reason why people get more opportunities than we think. Why there is Ratan Tata, why there is Mukesh Ambani, because they want to be the contributors, because they think for a bigger cause. And that's what we lack
but that's why we are here. That's what I think, and that's what we want to say. I agree. That's beautifully said. Third is prerna, सद्भाव जागृत रखना, संयम रखना, समय की सदुपयोग करना. As you believe in endless learning, I understand endless learning is important. Constant improvement is learning, and I think we all have understood what learning means. It is not about gaining qualifications, but learning from what you see, observe from nature, through nature, and that one thing. And I want you to share that poem जो आप बोल रहे थे कि वह क्या महकेगा जिसमें खुलशन को महकेगा भाव. I want you to say that again. I think you should end by saying this. वह क्या महकेगा जिसमें गुलशन महकाने का भाव नहीं. वह क्या महकेगा जिसमें गुलशन महकाने का भाव नहीं. वादियों की दुर्गंध को सुगंध बनाने की चाह नहीं. वादियों की दुर्गंध को सुगंध बनाने की चाह नहीं. Wow. Thank you so much, Marasa. Thank you so much. I guess this has been the end. This is the greatest takeaway that we could ever get. So I would like to thank you, Marasa, also Sadhika Pragbaji, Virat Marasa, for such an enlightenment session. And we will see to it that we create a new bioscope ourselves, and we observe, we see it by ourselves. Thank you. जय हो. आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं महाराज साहब जी को बथेर वंदा में कहूँगा. और आज काफ़ी लोगों के प्रश्न आए हैं महाराज साहब जी. तो आज का टॉपिक जैसे थोड़ा जनरल है, वैसे क्वेश्चंस भी थोड़े जनरल अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं. तो मैंने थोड़े क्वेश्चंस जो काफ़ी लोगों के आए हैं उनको क्लब किया है, और मेरे पास 3 से 4 प्रश्न है जो मुझे लगता है कि सारे लोगों को कहीं ना कहीं रहेंगे, जो आप जिस पे आप अपना ज्ञान दे सकते हैं. मैं आपको पहला प्रश्न करना चाहूंगा महाशय जी. आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहला प्रश्न एक बहुत ही छोटे यंग पर्सन से है, खुशी रुनवाल. बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है जो आई थिंक आज के यंगस्टर्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है. प्रश्न ये है कि ये छोटी सी उम्र में हमें नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है हमारे फ्यूचर में, हमारे जिंदगी के साथ. तो उसके लिए क्या व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक, हम कौन से पड़ाव ले सकते हैं जिससे हम वो डिस्कवर कर पाए कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है. और हाँ, तो ये एक प्रश्न है. और ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न है जो पेरेंट्स की तरफ से आया है, दीपाली जैन करके है और उगम गांधी जी करके है, कि हमें हमारे बच्चों से कोई भी पूछता है कि भैया तुम्हें क्या बनना है, तो वो कुछ कहते नहीं है, वो बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है. तो इस समय में पेरेंट्स को क्या करना है? उन्हें शांत रहना है, या उन्हें कैसे दिशा देनी है अपने बच्चों को, या फिर उन्हें समय देना है ये चीज के लिए? जय हो. पहला प्रश्न खुशी रोनवाल का, जो ये जानना चाह रही है कि इस समय में हमें नहीं पता कि हमें क्या बनना है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें ये पता लगे कि हमें क्या बनना है. देखिए, क्या बनना है, भविष्य के गर्भ में किसके क्या छुपा है किसी को नहीं पता. लेकिन किन बातों से बच के रहना है और किन बातों को सावधानी से अपनाना है, उन चीजों को सीख लो. जैसे आपको सबसे पहले ऐसे लोगों की संगति से बच के रहना है जो कि आपको आलसी बनाएंगे, आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने की आदत पैदा करवाएंगे, मतलब सुविधा भोगी बनवाएंगे, और जो नकारात्मक बातें बोल करके आपकी सोच को डिस्टर्ब करेंगे, जो आपको बात बात में पीड़ित करेंगे. ऐसे लोगों की संगति से बच के चलना, क्योंकि
अभी हम सब मतलब जिसने प्रश्न किया वो काफी छोटी एज की है, तो आपकी फ्रेंडशिप का, आपके फ्रेंड्स का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आपको किस तरह के फ्रेंड से बच के रहना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जो बात बात पे आपको निगेटिव सोच देता है, आपके अंदर कंपैरिजन पैदा करवाता है, आपके अंदर दुख लाता है, शिकायतें लाता है, ऐसे लोगों की संगति आपको नहीं करनी है। तो बच के रहना है गलत लोगों के प्रभावों से। दूसरी बात, बच के रहना है बहुत ज्यादा सुविधाओं से, क्योंकि जितनी ज्यादा सुविधाएं लोगे उतने ही अधिक आलसी बन जाओगे, और जो आलसी बन जाएगा वो कुछ भी नहीं बन पाएगा, जो आलसी बन जाए वो कुछ भी नहीं बन सकेगा। तीसरी बात, आपको बच के रहना है बहुत सारे इच्छाओं से। अगर आप बहुत सारी इच्छाओं पालोगे तो कभी भी इच्छा शक्ति के मालिक नहीं बन पाओगे। मतलब इफ यू हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स देन यू विल लॉस्ट योर विल पावर, इसीलिए यू विल लूज योर विल पावर। इसीलिए कभी भी अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है तो बहुत सारी इच्छाएं मत पालो, जैसे कि मैं ये भी पालूं, वो भी पालूं, ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए। दिन भर कुछ भविष्य की कल्पनाओं, सुखों की कल्पनाओं में मत जियो, ठीक है। और तीसरी बात, आप बच के चलो विरोध करने से। अगर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात काटते हो, विरोध करते हो, अपोज करते हो, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कभी भी नहीं सीख सकोगे। इसीलिए इच्छाओं से बच के चलना, नकारात्मक लोगों की संगत से बच के चलना, और विरोध करने से मतलब अविनीत होने से बच के रहना, इन बातों से बच के रहना। और ध्यान किस पर देना, हमेशा अपना आपको इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, और जब जो करती हो उसको पूरी तन्मयता से करो। जो भी आप सीखती हो, जो भी कार्य करती हो, उस पूरी तन्मयता से करो, अपना बहुत अच्छा फ्यूचर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लोगी। और हर दिन को जो अच्छे से जीता है, क्योंकि हर दिन को जीने का तरीका ही वह तत्व है जो आपके कल को अच्छा बनाएगा। पल को अच्छा जियो, कल अच्छा बन जाएगा। पल पल जियो, कल ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। अच्छी फीलिंग्स में जियो, अच्छी भावनाओं में जियो, और हमेशा हर चीज के लिए ग्रेटफुल बने रहो, तो फ्यूचर अच्छा बनेगा। जय हो। सेकंड क्वेश्चन था कि हमारे बच्चों को लेकर के अगर कोई पूछते हैं कि इनको क्या बनाना है, क्या बनना है, तो हमारे पास आंसर नहीं होता। कुछ दिनों पहले मेरे को एक भाई बता रहा था कि आजकल हर फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, जैसे सीए बनना हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, हर फील्ड में बहुत सारा कंपटीशन है। तो आपको अपने बच्चे को इनमें से कुछ भी बनाना है तो डिफिकल्ट है, लेकिन एक इंसान बनना एक ऐसा फील्ड है जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है। इसीलिए आपको अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए, एक समझदार इंसान बनाना चाहिए, और उसके लिए आप उसको अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें दो, अच्छी प्रेरणाएं दो, अच्छा माहौल दो, और उनको ये सिखाओ कि वो किसी की कॉपी न करे, ओरिजिनल बने, डुप्लीकेट मत बनो। कभी किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के जैसा बनने की कोशिश करेगा तो वो अपने मूल स्वरूप को ही खो बैठेगा। ओरिजिनल बनो, मौलिक बनो, जैसे अंदर हो वैसे बाहर बनो, और आप भी वैसे बनो, और अपने बच्चे को भी वैसी ही प्रेरणा दो कि वो एक अच्छा इंसान बने। ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। जय हो। बहुत ही बढ़िया महासब जी। आई थिंक ये बहुत ही फंडामेंटल चीज आपने बताई है, जिससे बच्चों को क्या करना है उससे पहले क्या बनना है वो उसका जवाब दे देता है। आई होप कि ये आपने जो आंसर दिया है वो सारे बच्चों को यहाँ पे काम आए और वो इससे कुछ ले पाए। फिर भी मुझे थोड़ा यही प्रश्न को और एक डिटेल में पूछना है कि मुझे क्या करना है आगे। मैं ये सारी चीजें करूंगा, मैं सारे कार्य करूंगा जो आपने बताया वो मैं करूंगा, मैं आज मैं जीऊंगा, बट मुझे भविष्य में क्या करना है वो अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, उसका कंफ्यूजन है। तो उसके लिए क्या करना है? जय हो। आपको कंफ्यूजन है कि भविष्य में आपको क्या करना है, मुझे वो पता लग जाए। जब क्रिकेटर्स लोग जब फील्ड में जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या उनको पता होता है क्या कि बॉल किधर से आएगी, कैसे आएगी, और मैं बैटिंग कैसे करूंगा? क्या वो पहले से प्लान कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। वो केवल प्रैक्टिस के टाइम में एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में बॉल जब आएगी, ऑटोमेटिकली उनकी अटेंटिविटी
उनके भीतर से कुछ ऐसा करवा देगी कि वो राइटली बैटिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो शायद आप आंसर समझ गए होंगे कि भविष्य हमारे सामने कैसे अनफोल्ड होगा, वी डोंट नो। लेकिन जब भी जैसे भी अनफोल्ड होगा, हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो, मतलब हर दिन हम इतने काबिल बनते जाएं, अपना आप को इम्प्रूव करते जाएं कि जब जैसा जो भी क्षण आएगा उस समय हमारी बैटिंग प्रॉपर होगी, प्रॉपरली हम अपने लक्ष्य को हिट कर पाएंगे। जय हो। थैंक यू महाशय जी। मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा विच इज अगेन ऑन अ जनरल टॉपिक एंड आई थिंक सबके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ये प्रश्न पूछा है अशोक सलेचा जी ने। प्रश्न ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सफलता की परिभाषा क्या है? जय हो। सफलता की परिभाषा क्या है? हम जो होने को हैं वह हो जाएं, उसका नाम सफलता है। जैसे एक बीज, जिस भी चीज का बीज है, आम का है, अमरूद का है, जामुन का है, केले का है, वो बीज अपने भीतर जो संभावना लेकर आया है एक पूरा वृक्ष बनने की, फल फूल देने की, जब वो पूरा फल दे पाता है तो कहते हैं वो बीज सफल हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम में से हर एक व्यक्ति अपने भीतर बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के है और वे संभावनाएं उसको अपनी परिस्थितियों में प्रेरणा देती है, अगर वो व्यक्ति सावधान होकर के अपने आप को सुन पाए तो। हर व्यक्ति अगर खुद को सुन पाए, मैं जानती हूँ थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को औरों को ही सुनने की आदत है, खुद को सुनने की आदत ही नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए प्रेयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए साइलेंस रहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप शांत बैठो, और कभी नहीं बैठ सकते तो सोने से पहले बैठ जाओ। सोने से पहले 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट्स तो बैठो खुद के पास में, तो आपके अंदर में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी प्रेरणाएं जागेगी, फिर आप जो होने को हो, जब वो हो जाते हो तो आप सफल होते हो। बादल बरसने के लिए है, जब वो बरस जाते हैं तो बादलों ने अपनी सफलता पा ली। बारिश फल फूल उगाने के लिए है, जब वो उगा लेती है बारिश भी सफल हो गई। नदियां सागर तक पहुंचने के लिए है, पहुंच जाती है तो सफल हो गई। और जब आपके भीतर भी संतुष्टि का वह चरम शिखर आ जाता है, जब आपको लगता है कि हाँ, मैं अपने सारे ऋणों से मुक्त हुआ, यानी माता पिता के प्रति जो मेरे ऋण हैं, मेरे गुरु के प्रति मेरे जो ऋण हैं, समाज के प्रति मेरे जो ऋण हैं, इस विश्व के प्रति मेरे जो ऋण हैं, उन सब के ऋणों से मैं मुक्त हो पाया, मैं अपना कुछ ऐसा दे पाया, कंट्रीब्यूट कर पाया, तब आपको खुद को फील होगा हाँ अब मैं सफल हूँ। आपकी सफलता अखबारों की सुर्खियों में आने से नहीं है या टीवी के पर्दे पर आ जाने से नहीं है। आपकी सफलता सही मायने में तब है जब आपको फील हो जाए कि हाँ मैं अपनी योग्यता से इस समाज को कुछ दे पाया, और ये आप ही फील करोगे। आप अपने आप को सुनो, खुद के साथ ईमानदार बनो, खुद की आवाज को सुनो, तो आपकी आवाज आपको गाइड करेगी। लाइफ इज अ मूवमेंट एंड ऑल मूवमेंट्स नीड्स अ गाइड। Who will be guide for you? Your consciousness is only the guide for you. बहुत ही बढ़िया महासाहेब जी। आई होप दैट ये प्रश्न से काफी लोगों का जो ये प्रश्न रहेगा या सफलता की ये नई परिभाषा उन्हें आज मिल पाएगी इससे। तीसरा सवाल मैं लेना चाहूंगा, ये भी एक जनरल प्रश्न है जो ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा नॉलेज हमारे लिए सही है, विच नॉलेज इज गुड, और हमें वो मालूम पड़ता है तो उसे हम कैसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं? प्रश्न यह है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि विच नॉलेज इज गुड। तो सूत्र ये कहते हैं कि आप नॉलेज लोगे तभी पता लगेगा कि वो नॉलेज गुड है या बैड है। ठीक है। दूसरी बात, वह नॉलेज जो आपके भावों और विचारों को डिस्टर्ब करे, आपके भावों और विचारों को अप्रेरित करे, डीमोटिवेटेड करे, आपको नेगेटिव थॉट्स में ले जाए, आपको क्षणिक सुखों में आकर्षित करे, आपको अपने आप के असली आनंद से भटकाए, आपके आत्मविश्वास को कमजोर करे, वह नॉलेज जो आपको इंद्रियों के सुखों का गुलाम बना दे, वह नॉलेज आपके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन वह नॉलेज जो आपके असली स्वरूप को
उद्घाटित करवाए, रिवील्ड करवाए, आपके अंदर आनंद, प्रेम और आपकी काबिलियत को इस तरह से योग्य बनाए कि आप सबके जहां हो उस वातावरण के अंदर सहयोगी बन सको। जो जहां है उस वातावरण के अंदर, हर कोई आदमी बहुत किसी बड़ी पोस्ट पे जाए ऐसा मत सोचो। हम में से जो जहां खड़ा है वहीं पर हम सहयोगी बन सके। एक सफाई करने वाला वह भी काबिल होना चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारे घर में अगर कोई नल ठीक करने वाला भी हम बुलाएं तो हम चाहेंगे कि वो भी एकदम सही परफेक्ट आदमी आए जो कि तुरंत नल ठीक कर दे। तो देखो, कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में स्किलफुल होने की जरूरत है। तो अगर आपकी काबिलियत आपको स्किलफुल बना रही है और आप जहां हो वहां पर आप सहयोगी हो पा रहे हो, जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में, तो वो नॉलेज आपके लिए काम की है। और बाकी वो नॉलेज जो आपको अपने ही रास्ते से भटका देगी, आपको अपने घर परिवार से भटका देगी, आपको अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप से भटका देगी, वह ज्ञान आपके लिए काम का नहीं है। तो ज्ञान का पता कर सकते हैं जो हमें दुखों के रास्ते में ले जाएगा, पीड़ा के रास्ते पे ले जाएगा, जो लोगों को डिस्टर्ब करवाएगा, परिवार के फ्यूचर को डिस्टर्ब करेगा, वो नॉलेज काम का नहीं। जय हो। जय हो।